Good morning, dear students. Hope you all are safe at your homes and doing studies also. So, dear student, in chemistry, previous we discussed about the chemical reaction. Now we will start our new topic, that is chemical equation. So, you know, chemical reaction means it is a process in which reactant convert into product, and the chemical equation means it is a representation of that reaction using symbols of substances. Means chemical equation is a way to represent the chemical reaction in concise and informative way, and that way is known as chemical equation. Suppose, see, burning of magnesium. When magnesium burns in oxygen, it gives magnesium oxide. Clear? So that burning or combustion is a process. वो जो बर्न हुआ या कंबशन हुआ वो केमिकल रिएक्शन हुआ, बट आप उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? हम कैसे लिखेंगे उसे? Mg + O2 gives MgO. सो दिस रिप्रेजेंटेशन, ये जो रिप्रेजेंटेशन था इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन. ओके, सो सिंपल symbolic representation of chemical reaction is known as chemical equation. A plus B gives C plus D. Here A and B are the reactants, C and D are the products, and reactant and product are separated by this arrow, and this arrow also shows the direction of chemical reaction. On above this arrow we can write some conditions. Conditions means आपको पता है कि मैक्सिमम रिएक्शंस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक प्रेशर पर होती है, या कुछ रिएक्शंस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है. सो किस टेम्परेचर पर हो रही है, किस प्रेशर पर हो रही है, या किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, ये सब हमें इस एरो के ऊपर लिखना होता है. ओके, ये सब कंडीशंस कहलाती हैं. नाउ we will take one example for chemical equation. See, when hydrogen reacts with oxygen, it gives water. This reaction can be represented by the following chemical equation. See, hydrogen plus oxygen gives water, and H2 plus O2 gives H2O. ये जो दोनों तरीके हैं ये केमिकल इक्वेशन को बताते हैं. इन फर्स्ट इक्वेशन वी यूज वर्ड्स, एंड इन सेकेंड इक्वेशन वी यूज सिम्बॉल्स. ओके, बट इन जनरली फॉर कन्वीनियंस वी यूज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बट दैट रिप्रेजेंटेशन विच वी यूज इन वर्ड्स इज ऑल्सो यूज्ड, उसे भी यूज किया जाता है, बट मेनली वी यूज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ इट इज क्लियर द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. ओके, सो वी जनरली यूज symbols to represent a chemical reaction, and that symbolic representation is known as chemical equation. We can make this chemical equation more informative by using the states of reactant and product. For example, here hydrogen is gas, so हाइड्रोजन H2 के पास आप एक स्मॉल ब्रैकेट में G लिख सकते हैं. O2 इज ऑल्सो गैस, तो O2 के भी बॉटम में स्मॉल ब्रैकेट में आप G लिख दें, और H2 इज अ लिक्विड, सो H2 के बॉटम में स्मॉल ब्रैकेट में आप L लिख दें. ओके, सो दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. नाउ वी विल ट्राई to balance a chemical equation.
balance chemical equation. This we learn in 5 easy steps. Okay, so first count the atoms on each side of the equation. Okay, we have to count the atoms on the reactant and product side both. Acid plus O2 gives SO2. Here the reactant side 8 atoms of sulfur and 2 atoms of oxygen are present. On the product side 1 atom of sulfur and 2 atoms of oxygen are present. Okay, clear बेटा? ऑक्सीजन 2 है, सल्फर 1 है, उधर रिएक्टेंट साइड सल्फर 8 है और ऑक्सीजन 2 है. तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या बैलेंस करना है? सल्फर. और किसी भी एटम के बॉटम में अगर कुछ नहीं है, इट मीन्स कि आप उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे? 1. नाउ हियर सी स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स को चेंज कर सकते हो, जो उनकी एटॉमिसिटी होती है उसको चेंज नहीं करना है. फॉर एग्जांपल एसिड, यहाँ जो 8 है ये एटॉमिसिटी है सल्फर की, 2 है वो एटॉमिसिटी है ऑक्सीजन की. आपको ये चेंज नहीं करना है. आप क्या चेंज कर सकते हो? इनके आगे. ओके, सो आपको सिर्फ एटॉमिसिटी चेंज करनी है. यहाँ पर अब स्टेप 2 में आपको हर एक एटम को दोनों साइड बैलेंस करना है. ओके, सो इक्वल एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन. देखो सल्फर एसिड के आगे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, इट मीन्स की 1. O2 के आगे भी 1, SO2 के आगे भी 1. आप क्या चेंज कर सकते हो? अभी आपको कहा कि ये जो बॉटम में लिखे हुए नंबर्स हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते. आपको क्या चेंज करना है? आगे. तो सल्फर रिएक्टेंट के साइड 8 है और प्रोडक्ट की साइड 1 है, तो क्या करें? आप कभी भी कम नहीं करोगे. यू विल नॉट डिक्रीज द एटम, ऑलवेज यू हैव टू इंक्रीज द एटम्स. तो हम क्या करें? सल्फर के आगे 8 लगा देते हैं. ओके, अगर आप सल्फर के आगे 8 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? सल्फर के भी 8 एटम्स हो जाएंगे. करेक्ट है ना? तो यहाँ पर सल्फर कितने हो गए? 8 एटम्स, क्योंकि पहले 1 था, अब 8 लगा दिया तो आपके पास 1 × 8 कितने एटम्स हो गए? 8 एटम्स हो गए. ओके, लेकिन आगे 8 लगाने से ऑक्सीजन कितने हो गए? सल्फर तो बैलेंस हो गया, बोथ द साइड सल्फर एटम्स आर 8, बट नाउ ऑक्सीजन इज 8 × 2 दैट इज 16. अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 16 हो गए, जबकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन कितने थे? सिर्फ 2. तो अब आपको इक्वेशन में ये वाले स्टेप को बैलेंस करना है. ओके, क्या करें? हम ऑक्सीजन के आगे अगर 8 लगा देते हैं, यू राइट 8, तो क्या हो जाएगा? 8 × 2, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 16. इट मीन्स कि अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस. दोनों साइड सल्फर 8, दोनों साइड ऑक्सीजन 16 मीन्स इक्वेशन ये आपकी बैलेंस हो गई. क्लियर है? आपको क्या करना है? बॉटम के नंबर्स कभी भी चेंज नहीं करना है. जो फ्रंट में आप कोएफिशिएंट्स यूज़ करते हो उसको आप चेंज कर सकते हो, और कभी भी डिक्रीज नहीं करना है, आपको इंक्रीज करना है. ओके, सो स्टेप 3, यू कैन चेंज ओनली द कोएफिशिएंट्स. समझ में आ रहा है? जो आपने आगे लिखे वही बदल सकते हो, बॉटम वाले एटम्स को आप चेंज नहीं कर सकते. अनदर एग्जाम्पल, H2 + O2 गिव्स H2O. हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है. अब इजी हो गया. आपको क्या करना है बेटा? आपको सिर्फ वाटर का कोएफिशिएंट चेंज करना है. अगर आप वाटर का कोएफिशिएंट चेंज करते हो, देखो आप अगर 1 लगाते हो तो कोई मतलब नहीं, आप 2 लिखो. 2 लिखने से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 2 × 2 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 × 2, तो ऑक्सीजन आपके 2 हो गए. क्लियर है? तो ऑक्सीजन दोनों साइड आपके बैलेंस्ड हो गए, बट क्या नहीं बैलेंस हुआ? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन अब डिस्टर्ब हो गया. क्या करें? आप हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट चेंज कर दो. हाइड्रोजन के आगे फ्रंट में अगर आप 2 ऐड कर देते हो तो 2 × 2 हाइड्रोजन अब आपके कितने हो जाएंगे? 4. क्लियर? सो यहाँ पर इक्वेशन आपकी क्या हो गई? बैलेंस्ड. क्लियर है बेटा? यू ओनली चेंज द कोएफिशिएंट्स, नॉट द एटॉमिसिटी ऑफ द कंपाउंड और मॉलिक्यूल. क्लियर? नाउ
नाउ स्टेप 4 डीलिंग विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, मतलब अगर रिएक्शन में पॉलीएटॉमिक आयंस है तो उनको कैसे करें। बेटा जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं ना तो आप उसको सेपरेट आउट नहीं करेंगे। जैसे CaSO4 तो SO4 सल्फेट आयन है, NaNO3 नाइट्रेट आयन है, तो आप इसको अलग अलग नहीं करेंगे। SO4 को एज अ वन होल एंटाइटी यूज़ करते हैं, ओके, और NO3 को भी एज अ वन होल एंटाइटी यूज़ करो। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखो आप यहाँ पर CaSO4 gives NaNO3, सॉरी CaSO4 प्लस NaNO3 इट गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। रिएक्टेंट के साइड कैल्शियम कितना है 1, प्रोडक्ट के साइड कैल्शियम कितना हो गया आपका 1, क्लियर है। अब सल्फर SO4 देखो पूरा का पूरा SO4 पूरा 1 मॉलिक्यूल सॉरी 1 आयन है, ठीक है ना। तो SO4 पूरा का पूरा कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम्स, तो 1 हो जाएगा रिएक्टेंट के साइड। प्रोडक्ट के साइड भी आपके पास कितना है, एक ही है, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, सोडियम देखो कितना है 1, प्रोडक्ट के साइड सोडियम कितने बेटा 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब NO3 रिएक्टेंट के साइड कितना है 1, है ना। और अब प्रोडक्ट के साइड NO3 देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब NO3 कितने टाइम्स है बेटा 2 टाइम्स है, तो NO3 आपके कितना हो जाएंगे 2, ओके। तो NO3 अब इस पूरी इक्वेशन में आपको बैलेंस क्या करना है, एक तो नाइट्रेट आयन बैलेंस करना है और एक सोडियम आयन। अगर आप NaNO3 के आगे 2 लगा देते हो तो देखो अब रिएक्टेंट में सोडियम कितने हो गए 1 इंटू 2 2 हो गए। अब NO3 भी कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया 2, और पूरे मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई आपको 2 से करना होता है, ठीक है। तो सोडियम भी 2 टाइम्स हो गया, NO3 भी 2 टाइम्स हो गया। तो अब आपके पास बोथ द साइड्स सी बोथ द साइड्स नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए, क्लियर। मीन्स CaSO4 plus 2 NaNO3 gives CaNO3 whole twice plus Na2SO4. Now this equation is balanced equation, clear है। Now another case, we have to count all the atoms present in equation. CH4 plus O2 gives CO2 plus H2. So reactant side only 1 carbon, hydrogen 4 and oxygen 2 present. In product side see 1 carbon is present, and in CO2 2 oxygen, and in H2O 1 oxygen. तो total how many oxygen are present बेटा 3 oxygen, ओके। आपको यहाँ पर प्लस, अगर बीच में प्लस साइन है तो आपको एटम्स को प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्लियर। हाइड्रोजन 2 क्या करें, आप बैलेंस करें हाइड्रोजन को। अगर करते हैं सी अगर H2O के आगे 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 इंटू 2 4, करेक्ट। अब ऑक्सीजन का नंबर भी बदल गया, CO2 में तो 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट थे ही थे, करेक्ट है। लेकिन अब H2 में भी कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा 2, करेक्ट है। तो 2 प्लस 2 कितने टोटल हो जाएंगे आपके 4। तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन 4, प्रोडक्ट के साइड रिएक्टेंट के साइड कितने थे 2, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे 2 लगा दिया, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 हो गए। अब बैलेंस हो गए क्या, यस। सो दिस इज हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्लियर है, समझ में आ गया। फिर से बोल रही हूँ बॉटम के नंबर्स चेंज नहीं करने होते, ओनली आपको कोएफिशिएंट चेंज करना होता है।